Good morning to all. Today we are going to discuss a new chapter, gravitation, and especially we are going to focus on universal law of gravitation. Okay, so first term is here gravitation. So gravitation is the phenomena of attraction. It is not phenomena of repulsion. It is attraction between any two object in the universe. ऑब्जेक्ट में बी टेरेस्ट्रियल या दोज ऑब्जेक्ट फाउंड ऑन अर्थ, ऐसे ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे पाए जाते हैं, एज वेल एज सेलेसियल ऑब्जेक्ट या विच आर फाउंड इन आउटर स्पेस. सो ऑब्जेक्ट में बी बिग या स्मॉल, वाट एवर में बी. सो देयर इज अ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. दिस ऑब्जेक्ट मे बी फाउंड ऑन अर्थ या मे बी फाउंड on outer space of earth. Okay, so this force of attraction is known as gravitational force. This is the gravitational force of attraction between any two object is called the gravitational force. This force is always mutual. It means if earth attract an apple, apple will also attract earth. Okay, with same magnitude of force. Okay, so this is the mutual force. So according to, we have already studied the Newton's three laws: Newton's first law, second law, and third law. So according to the Newton's third law, to every action there is always an equal and opposite reaction. हर एक्शन के अगेंस्ट अपोजिट में रिएक्शन होता है. तो सपोज करें, if we can see, या we have been watching, या apple या any object fall towards earth, but earth do not rise, या never seen rising towards the earth and apple. या you can say we cannot see the earth rise high towards apple. अर्थ जो है वो एप्पल को तो खींचता है, तो क्या एप्पल भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? यस, अट्रैक्ट तो करता है एप्पल भी, लेकिन हम अर्थ को कभी मूव करते हुए एप्पल की तरफ नहीं देखते हैं. सो व्हाई वी नेवर सीन द अर्थ राइजिंग टूवर्ड्स एप्पल? सो दिस इज आल्सो explained by the Newton's second law of motion. So we already know that force is the product of mass and acceleration. F is equal to ma. This is the second law of motion. F is equal to ma, where m is the mass of that object and a is acceleration of that object. So here what will happen? Yeah, you can say also acceleration is directly inversely proportional to the mass. How? If F is ma, then a is what? A is F divided by m. So a is here, a is inversely proportional to the mass. If mass is more, then acceleration will be very less. So that, so in case of apple, mass of apple is very less. That is why acceleration we have been seen. हम एप्पल को तो गिरते हुए नीचे देखते हैं क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है, लेकिन अर्थ को हम एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखते, बिकॉज मास ऑफ अर्थ इज फार फार much heavier than mass of apple. That is why apple attract towards earth, but apple also attract earth, but earth never seen moving towards apple. Okay, because mass of earth is very very high. That is why we cannot see the motion of earth towards apple. Okay, this is the clear by second law of motion. नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ
gravitation, universal law of gravitation. Universal means it is, this law is applicable in whole universe. Okay, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये क्या लॉ है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is the universal law of gravitation. Okay, the law applied to any object. Okay, where in universe, कुछ कोई कहीं भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में, उन सभी के दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स. इसी को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, सपोज करें, लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी. सपोज करें कि ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास हैविंग एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. ए का मास कैपिटल एम है और स्मॉल एम का मास, कैपिटल बी का मास स्मॉल एम है. एंड दिस टू ऑब्जेक्ट लाई एट अ डिस्टेंस डी बिटवीन देम. एक दूसरे से डी के बीच में लाई करते हैं, उनके बीच की दूरी है सेंटर से. लेट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बी एफ. मान लीजिए उनके बीच में फोर्स लग रहा है एफ. दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस. ये फोर्स जो है उन दोनों के बीच में जो मासेस हैं उसके प्रोडक्ट के बीच का है. ओके, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट. एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन of two between two object is inversely proportional to the square of their distance between them. उनके बीच की दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के होता है. तो अब यहाँ पर देखिए क्लियरली दिखाई दे रहा है, हियर ऑब्जेक्ट ए एंड दिस इज स्मॉलर ऑब्जेक्ट बी हैविंग ए हैव मास एम एंड बी ऑफ मास स्मॉल एम. And distance between these two objects is d. This is d from the center. इस center से इनके बीच की दूरी. Okay, and here attraction force offered by both object A and B in this direction F. This is the force of attraction F. Okay, so on combining these two equation. Okay, equation first is, first equation, force is directly proportional to the product of their masses. This is the first equation. Second, force is inversely proportional to the square of distance between two objects. This is second. So on combining these two equation, we have force is directly proportional to mass capital M and small m डिवाइड बाई डी स्क्वायर. ओके, दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद नाउ वी हैव टू रिमूव दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाय यूजिंग अ कांस्टेंट. हियर वी यूज अ कांस्टेंट जी, कैपिटल जी. अब से देखते हैं हम लोग, बाय यूजिंग कांस्टेंट जी वी कैन रिमूव या रिप्लेस द proportionality constant. This is g, capital M, small m and divide by distance square. Okay, so this is the force of attraction between two objects. Here g, capital G is the constant of proportionality and it is called as universal gravitation constant. Its SI unit will be Newton meter square per kg square. Okay, and value of g is very small. It is Henry Cavendish find out the value of g. Okay, with sensitive valence it is 6.673 into 10 per raise minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, so value of g is very small. ओके, ये वैल्यू जी की वैल्यू बहुत कम है. देखिए कैसे, इसीलिए हम
दो आदमी के बीच या दो बिल्डिंग के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है हम उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जी की वैल्यू बहुत है। जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ जी विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ। जी की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगा कब? व्हेन वी टेक टू ऑब्जेक्ट, when we take two objects, suppose object A and object B, mass of object capital A is 1 kg and mass of small object B is also 1 kg and distance between two is if 1 meter। अगर हम 1 मीटर के दूरी पर दोनों को रख दें, मान लीजिए ये A है और ये ऑब्जेक्ट B है, then what will happen? force F is equal to G मल्टीप्लाइड बाई M का कैपिटल M 1 kg है, ओके, एंड दिस इज आल्सो 1 kg एंड D दूरी भी 1 kg का स्क्वायर होगा, ओके। तो अब आगे यहाँ पर देखें आप, सो F इज इक्वल टू G की वैल्यू दिस इज 6.67 इंटू 10 पर एज माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 1, ओके, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। सो स्क्वायर ऑफ 1 विल आल्सो बी इक्वल टू द 1। सो इससे सब डिवाइड करेंगे तो ये सारे कट जाएंगे, ओके। नेक्स्ट अब आपके पास बचा क्या? एफ फोर्स इज इक्वल टू द जी दैट इज 6.67 इंटू 10 पर एज माइनस 11 न्यूटन। मतलब 1 kg के दो ऑब्जेक्ट 1 kg के उनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर हो तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है दिस मच न्यूटन, दिस 6.67 इंटू 10 पर एज माइनस 11 न्यूटन। ये बहुत कम है, दैट इज़ वाई फोर्स विल बी नेवर विजिबल। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से सटते नहीं हैं। इसी तरह बड़े बड़े दो बिल्डिंग भी हों तो भी वो एक दूसरे को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता कि वो एक दूसरे को खींच लें, ओके। सो वैल्यू ऑफ जी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर ये बहुत बड़ा जैसे अर्थ की वैल्यू है तभी हम पता कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एफ, ओके, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the masses of product of masses of two object, okay। F is directly proportional to the product of two masses या masses of two object। next अगर हम ये क्वेश्चन आता है what will happen if we double the mass of one object। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल कर देंगे तो F जो है वो 4 टाइम हो जाएगा, ओके। F विल बी 4 टाइम्स अगर दोनों के मास डबल कर दें तो देन व्हाट विल हैपन इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट विल रिड्यूस टू हाफ। अगर हाफ रिड्यूस कर देंगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू। अगर हम D को 2 टाइम कर दें, F का वैल्यू क्या होना चाहिए? मान लीजिए ये 1 है और इसको हम 2 टाइम कर दें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा, 1/4, ओके। तो डिस्टेंस अगर हम दुगना कर दें उनके बीच में तो फोर्स क्या होगा? 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम फोर्स कम हो जाएगा अगर डिस्टेंस बढ़ा दें। और अगर डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ा दें, अगर डिस्टेंस उनके बीच की दूरी 3 टाइम बढ़ा दें तो आप देखे होंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा? इट इज़ 9। तो 9 टाइम फोर्स उनके बीच में जो लगेगा वो कम हो जाएगा, ओके। सो व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल, ओके, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी 1/4। और अगर ट्रिपल हो जाए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी 1/9, ओके। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो
The law of gravitation has many importance and it has been experimentally proved. जैसे motion, the motion of moon around the earth is due to the force of gravitation offered by earth. अर्थ एक फोर्स लगाता है मून पर, इसके कारण मून जो है वो सर्कुलर राउंड एंड राउंड कर रहा है. द मोशन ऑफ ऑल प्लैनेट अराउंड द सन, इट इज आल्सो ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सन टू द ऑल 8 प्लैनेट. अब आप देखते हैं रेनफॉल, स्नोफॉल, ओके, सोलर या लूनर इक्लिप्स, दिस ऑल आर ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस सेलेस्टियल बॉडी. ओके, next, tide formed in ocean are due to the gravitational force of attraction exerted by moon as well as sun on the water of earth surface. earth surface को ग्रेविटेशनल पुल जो लगाता है मून अपनी तरफ खींचता है, और सन भी अपनी तरफ खींचता है जो ओशन और सी में पानी है उसको, इसलिए टाइड आता है, हाई टाइड, ज्वार भाटा जिसको कहते हैं. ओके, दिस इज ऑल अबाउट. ओके, आप